Okay, so let's begin. We have been discussing this application, online testing application, which we have used Java functions and Java arrays to access all those things, and a little bit of CSS we have used to display the question as well as the options. Now, there are two important things which is to be done. First of all, we have to show the user how much time is remaining. So suppose it is a 15 minutes test or it is a 1 hour test. So we have to show the user how much time is remaining. And then the important thing is, another important thing is that once the time is over, suppose it is 15 minutes duration, and the user has not finished or not submitted, then also the system should automatically stop once the time is up. So there are few things related to time that we will be discussing today. But before that, we have to see two important concepts related to timing and the events related to scheduling. So I'll first come to the code, and there are two things that I've already prepared so that it will save time. Now, scheduling events with the help of setTimeOut and setInterval function. There are two functions. One function is setTimeOut, and the other function is setInterval. These two functions are a part of JavaScript library, and these two functions can be called to schedule our event. Normally, what happens whenever we click the button, the function is automatically called, or whenever we call a function, it is automatically called at the same very instant. But suppose we want to call the functions after a certain time, then we can use set time out, and set interval is used to call a function regularly at repeated interval. So we'll see the example of both of these functions. Now, in many situations, we may want to execute a function not right now, but after a certain time, that is later. This is called scheduling a call. There are two methods for it. Set timeout function. It allows to run a function once after the interval of time, and set interval allows us to run a function repeatedly. So how this is done and what will be the use of these two functions and how these two functions are important for our application that we are trying to develop, we'll see everything. This is the syntax for set timeout. Set timeout, then we mention the name of the function that is to be called, and then we mention the uh, time, how much time later this function will be called, and this is done given in milliseconds, where 1000 milliseconds is equals to 1 second. So this is important to know that set time out is a function. This set time out function will call this function that we will mention here, and this function will be called after this interval. So let us see the example. Now, here we have a click me button. Now, when I click this button, see this function is called automatically. As soon as I click this function is getting called. Now there is one more button, click me. And when I click this, it is not called instantly, but it is called after 5 seconds. So whenever we want that some function is to be called after a certain time, after some duration, then here, like I've clicked, the function is not called yet. It will be called after 5 seconds. See, after 5 seconds, it is getting called. Again, I'll show you the example. I'm clicking this, but the function is not getting called. It is waiting. Now, after 5 seconds, it is getting called. But here, if I click, it is instantly called. So let us come to the code and see how these things are happening. See here, in this case, in line number 40, what we have written,
input type button, value is click me, and on click, this is the event. As soon as this button is clicked, this F1 function will be called. And where is this F1 function? This F1 function is here at in the head. So it is just showing an alert F1 function. Now, this is simple. This we all can understand because there is one button, and as soon as the button is clicked, this function is getting called. Now, concentrate on line number 43. Here, what is happening? When we are clicking this button, we are not calling F1 function directly, but we are calling F1 function via setTimeOut function. So in setTimeOut function, we are mentioning that call this F1 function, but not now, after 5 seconds. This 5,000 means after 5 seconds. So as when we click the button, the second button, click me, the F1 function will be called after 5 seconds. And when you see the line number 40, when we click the button, the F1 function is called instantly. So this is one example of set time out. So set time out, a function is called after a given duration, whatever duration you want. Suppose I make it 1000, then what will happen? It will when I click the button, it will be called after 1 second. Let us come to the output. See, I'm clicking this and it is getting called after 1 second. Here, when I'm clicking it, it is called instantly. There's no delay. Here, when I'm clicking it, it is getting called, but after 1 second. So this is how we can do it. So I'll make it 5 as it was. Now coming to another example. Here, let me first show the output so that you can understand it properly. I'll go live. And here you can see that the time is getting displayed. And if I want to stop, I can click on the stop. How this is happening, let us see. Now, here, concentrate on line number 18. This is important. Okay. In line number 18, we are calling setInterval. So setInterval will call this myClock after every 1 second. What does setTimeout do? SetTimeout will call the function only once after the delay, and setInterval will call the function repeatedly until it is stopped after the delay. So when we will execute this, setInterval function will call this myClock after every 1 second. And in myClock, what we are doing, we are making object of date. Date we have already discussed in the previous section. And this is taking out the time. So after every 1 second, it is taking out the time and printing it on the screen. So it is behaving like a clock. And when we want to stop this clock, we have a ID of this set interval. So on the button click event, we have called clear interval. So this clear interval function will stop the myClock function, the set interval. Whatever was happening in the set interval, that will be stopped by the function clear interval. But in clear interval, what we have to do, we have to pass the ID. This is a variable, it can be X. We have to pass here X. So when we are calling the set interval, if we have the ID as X, the clear interval, we can use X to stop it. So if I'll come here in the output, and it is calling each time after 1 second. So it is displaying the time. Now I click the stop, and this is now not showing because this has cleared the function that was being called. So these are two functions which are important. One is set interval. Set interval is used to call the function repeatedly after the delay. The delay is given in milliseconds, and 1000 represents 1 second.
And if you see here, this is set timeout. In set timeout, what happens? The function is called only once. Now, these two functions have to be implemented in our online examination system. We have learned this so that we can implement this here. So I'll come to the program. This is the program that we have been discussing. Now I want to show the timing that is remaining. I want to show how much time is remaining. Suppose the time is for 5 minutes or the time is for 10 minutes, then how much time is remaining we have to show, or how much time has passed we have to show. Suppose we have to show how much time has passed. So that is to be automatically called and shown somewhere on the right hand side on the screen. So I'll come to the board. बोर्ड में आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पर एक div ले लेते हैं जिसमें हम टाइम दिखाएंगे. Div class equals to time 1, time 6, and then also take the ID equals to time with the same ID and the class. Now I'll come here and in the CSS I'll have to create time 1 class. Now time 1 class has to be shown on the right corner of the screen. So I'll use position, and position will be fixed. And where this position is to be fixed? Top right. So top and right will take it to the top right corner. At the end, we can give some margin to bring it in between. And here I'll show the time. Suppose I want to show the time here. Let us see how it is showing. So I'll come to the output and see at the top right corner, it is showing the position is fixed and it is showing here, but we have to show the time and it is at the extreme corner. So we have to bring it somewhere properly. इसके लिए what we will do, we'll give margin top से हम लोग उसको नीचे ले आते हैं 50 pixels और राइट से ही लेकर के आ जाते हैं 50 पिक्सेल्स. तो 50 पिक्सेल्स टॉप और राइट से हम लोग लेकर के आ जाते हैं. अब हम लोग आउटपुट देखते हैं. तो ये यहाँ पर आ गया. अब इसको थोड़ा हम लोग डेकोरेट कर देते हैं. पोजीशन आ गया. अब इसको डेकोरेट करने के लिए हम लोग बैकग्राउंड कलर से स्टार्ट करते हैं. बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट और कलर्स जिससे दिखेगा टाइम में भी डिस्क और width is the 100 suppose 150 pixels और height ले लेते हैं. height ले लेते हैं suppose 50 pixels. font size ले लेते हैं font size maintain batch और border radius 10 pixels. और अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं कैसा दिखता है. तो ये ऐसा दिख रहा है.
अब टाइम हियर को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, और ऊपर में आ गया तो वो हम लोगों को देना पड़ेगा पैडिंग से। जो बाहर का गैप्स होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ मार्जिन, और जो अंदर का गैप होता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पैडिंग। तो इसको पैडिंग पैडिंग और पैडिंग लेफ्ट से। अब देख लेते हैं आउटपुट कैसा दिख रहा है। थोड़ा और इसको हम लोगों को नीचे लाना चाहिए, और थोड़ा और हम लोगों को सेंटर पे करना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा नीचे लाने के लिए पैडिंग टॉप को हम लोग कर देते हैं 15 पिक्सल, लेफ्ट में कर देते हैं 20 पिक्सल, और अब एक बार आउटपुट ऊपर से थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा और नीचे का मतलब जो है 20 पिक्सल इसको करना पड़ेगा 20 पिक्सल, और थोड़ा सा राइट के लिए हम लोग इसको और अब हम लोग आउटपुट देख लेते हैं ये आ गया यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम लोगों को टाइम दिखाना है कितना सेकंड पास हो गया है। तो अब हम लोग ये जो फंक्शंस अभी हम लोगों ने सीखा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने इस प्रोग्राम में अभी तक जो सीखा है वो शेड्यूलिंग के लिए दो फंक्शन अवेलेबल होता है जावास्क्रिप्ट में, दैट वी हैव डिस्कस्ड। और सीएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने सीखा है पोजीशन। किसी भी चीज को हम लोग पोजीशन कर सकते हैं। पोजीशन हम लोग टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, कहीं पर भी हम लोग ले जा सकते हैं। जैसे ये एक सबमिट बटन नीचे में दिख रहा है तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, राइट और बॉटम, बॉटम 0 और राइट 0। अगर लेफ्ट साइड में दिखाना होगा तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोगों को टाइम यहाँ पे दिखाना है, टाइम हियर नहीं दिखाना है, एक्चुअल टाइम दिखाना है कितना टाइम इसका हो गया है। और फिर हम लोग टाइम रिमेनिंग अगर दिखाना चाहते हो तो वो दिखाएंगे। आते हैं अब हम लोगों को बनाना पड़ेगा, काम शुरू करना पड़ेगा। तो जब हम लोगों का एग्जाम शुरू हो रहा है, डिस्प्ले क्वेश्चन 1। ओके, तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट paragraph instructions। अब आउटपुट देखते हैं। अब ये देखिए हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है और उसके नीचे हम लोग का टेस्ट आ रहा है, और ये पोजीशन फिक्स है राइट साइड का टाइम का। देखिए पोजीशन फिक्स होने के कारण हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, बट ये टाइम वाला चीज स्क्रॉल नहीं कर रहा है। यू कैन सी टाइम इज एट द फिक्स पोजीशन। ये हम लोग ऐसे कर रहे हैं। इसको हम लोग थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। अब इसको कोड और P instructions। I just want to show the position fix। देखिए ये हम लोग ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, बट ये जो टाइम है दैट इज फिक्स्ड।
अगर हम लोग पोजीशन फिक्स नहीं करेंगे तो वो भी स्क्रॉल करने लगेगा, बट अभी पोजीशन फिक्स है इसलिए वो स्क्रॉल नहीं कर रहा। तो एक चीज ये हम लोगों को सीएसएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है फिक्स्ड करना। एक और चीज होता है स्टिकी। स्टिकी हम लोग देखेंगे इसी सेक्शन में, और जब कुछ और आगे बनाते हैं इस टेस्ट का तो हम लोग स्टिकी भी देखेंगे। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं। दिस वाज ओनली टू शो यू हाउ वी कैन यूज पोजीशन फिक्स्ड। तो अभी हम लोग ले लेते हैं लोरेन अबाउट, ये इंस्ट्रक्शन आ गया और यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, हाइट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग हाइट बढ़ा देते हैं। हम लोगों का हाइट इस कंटेनर का हाइट बढ़ाना पड़ेगा। कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर का हाइट इज 400, और अब देखते हैं ऐसे हो गया है। ओके, हम लोग इसको इतना रखते हैं। और अब हम लोग टाइम पे आते हैं, टाइम कैसे दिखाना है। टाइम दिखाने के लिए जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट का हेल्प लेकर के हम लोग इस काम को करना चाहते हैं। अभी हम लोग का जैसे ही इस पे आ रहा है, टाइम शुरू हो जा रहा है। स्टार्ट टेस्ट एक हम लोग बटन बना लेते हैं, और स्टार्ट टेस्ट बटन बनाने से हमारा टाइम को हम लोग शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग और ले लेते हैं button। Start test. Input time equals to button, value is equals to start test on click equals to एक फंक्शन बना लेते हैं स्टार्ट स्टार्ट टेस्ट, और ये टेस्ट को स्टार्ट करेगा। अभी हम लोग आउटपुट देखते हैं कैसा दिखता है। ये ऑनलाइन टेस्ट है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो टेस्ट का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। फिर सबमिट यहाँ पर हम लोगों ने बना कर रखा है, सबमिट कर देंगे। अभी स्टार्ट टेस्ट करने से यहाँ पे टाइम दिखने लगना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को सेट इंटरवल फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, जो इसको रेगुलर कॉल करता रहेगा। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, और सेट इंटरवल का सिंटैक्स अभी आपके सामने है, दिस इज सेट इंटरवल। तो इसको हम लोग कैसे काम करते हैं लेट्स सी। तो एक हम लोगों का सेट इंटरवल हम लोगों ने कॉपी कर लिया है, और सेट इंटरवल ऑन क्लिक सेट इंटरवल या माई क्लॉक को कॉल करेगा आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक माई क्लॉक नाम का जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट बनाते हैं और एक फंक्शन बनाते हैं, function। इस फंक्शन के थ्रू हम लोग आवर मिनट सेकेंड बढ़ाएंगे। ये यहाँ पर माई क्लॉक फंक्शन में ये कॉल होगा, और ये आवर मिनट सेकेंड के फॉर्म में हम लोगों को दिखाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, और हम लोगों को 3 वेरिएबल चाहिए होगा, आवर मिनट सेकेंड, कितना देर हो चुका है वो दिखाने के लिए। तो हम लोग वैर ले लेते हैं, और ये ग्लोबल हो जाएगा। अगर ग्लोबल लेना होता है तो एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन सबसे ऊपर ले लेते हैं, तो where अब और 3 वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया है। इसको हम लोग 0 से शुरू करते हैं।
प्लस टू जीरो प्लस टू जीरो प्लस टू जीरो। और ये तीन वेरिएबल हम लोगों ने लिया है टॉप में। नीचे आ जाते हैं। एवरी टाइम जब ये फंक्शन कॉल होगा तो सेकंड जो हो जाएगा वो प्लस प्लस हो जाएगा, सेकंड बढ़ जाएगा। तो हमारा जो टाइम है वह टाइम है, ये टाइम कितना हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग दिखा देते हैं कोलोन, कोलोन ऐसे दिख जाएगा, प्लस इसके आगे हम लोग दिखा देते हैं मिनट, तो मिनट हम लोग का ऐसे दिख जाएगा। इसके आगे हम लोग दिखा देते हैं सेकंड, तो ये हो जाएगा टाइम हम लोगों का आवर मिनट सेकंड फॉर्मेट में। और दिस हैज टू बी डिस्प्लेड वेयर, हम लोगों का यहाँ पे, यहाँ जाना है टाइम ईयर की जगह पे। यहाँ इसका नाम है टाइम वन। हम लोग यहाँ पर ये जो फंक्शन हम लोगों ने बनाया है इसको हम लोग टाइम वन की जगह पे लेके जाना चाहते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, आईडी है टाइम वन, और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू टाइम। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं। अभी टाइम नहीं दिख रहा है, ओके, लोग यहाँ पे लिख देते हैं, स्टार्टिंग में लिखा हुआ रहेगा टाइम, ये टाइम लिखा हुआ है। अब स्टार्ट टेस्ट बटन को हम लोगों ने क्लिक किया, तो ये देखिए ये शुरू हो गया और ये अब चलता रहेगा। और जैसे जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है और ये हमारा टाइम बन गया। ठीक है, कैसे हो रहा है इसको हम लोग फिर से समझते हैं, बट हो रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है कि हो रहा है, जो चीज हम लोग चाह रहे थे वो यहाँ पे यूजर अपना टाइम देख सकता है, कितना टाइम उसका हो चुका है। अब हम लोगों को इस टाइम में पहले तो समझना है कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद हम लोग को ये जब ये 60 होगा तो वो मिनट में ट्रांसफर होना चाहिए, जब से मिनट हो जाएगा तब आवर में ट्रांसफर होना चाहिए, वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके कोड में और हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी चेंजेस क्या किया। सबसे पहले तो ये हम लोगों ने एक डिव बनाया जिसमें टाइम दिखेगा, इसका नाम है टाइम वन, और इसको हम लोगों ने डेकोरेट किया है यहाँ पर। दिस इज द सीएसएस दैट वी हैव यूज्ड, पोजीशन यूज किया फिक्स राइट साइड में दिखाने के लिए, इतना हो गया। और उसके बाद हम लोगों के पास एक बटन है, ये बटन है जो टेस्ट को स्टार्ट करेगा, स्टार्ट टेस्ट। जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा तो ये माई क्लॉक फंक्शन को कॉल करेगा आफ्टर एवरी 1 second. setInterval function will call this my clock repeatedly after every 1 second. और माई क्लॉक में हम लोगों ने क्या लिखा है, तो माई क्लॉक में हम लोगों ने लिखा है कि हर बार जब ये कॉल होगा तो सेकंड एक बढ़ जाएगा, और सेकंड बढ़ेगा तो आवर मिनट सेकंड हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पर आवर मिनट सेकंड ऐसे हम दिखा रहे हैं। आवर पहले से 0 है, मिनट पहले से 0 है, सेकंड पहले से 0 था, तो ये 1 हो जाएगा, अगली बार 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आवर 0 दिख रहा है, उसको हम लोगों को बेटर बनाना है, तो हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, इफ आवर इज, सॉरी, एक वेरिएबल एच बनाते हैं, एक वेरिएबल एम बनाते हैं, एक वेरिएबल एस बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं उसको समझते हैं। इफ आवर इज लेस देन 10, मतलब एक डिजिट का है,
एच जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसके आगे एक जीरो हम लोग ऐड कर देंगे और प्लस जो हमारा आवर है वो हो जाएगा। अदरवाइज जो है हमारा वैसे दिखेगा और यहाँ पर आवर की जगह पे हम एच दिखाते हैं। पहले आउटपुट दिखाते थे उसको एक्सप्लेन करें। जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये सब क्वेश्चंस चला गया। if के कारण से अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड आ गया, करना पड़ेगा। if hour is less than 10, h is equals to 0 plus hour, आउटपुट में आ गया स्टार्ट टेस्ट, ये 2 डिजिट में आ गया। सिमिलरली हम लोग को मिनट को और सेकंड को भी 2 डिजिट में करना होगा, बट हमने क्या किया इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ऊपर में हमारे पास आवर मिनट सेकंड है, तो आवर मिनट सेकंड अगर आवर लेस देन 10 है मतलब 1 डिजिट का है, तो उसके आगे एच वेरिएबल एक हमने ले लिया है। एच वेरिएबल में मैंने 1 डिजिट का अगर है 0 to 9 है तो उसके आगे 0 ऐड कर दिया और यहाँ पर हम टाइम में एच दिखा रहे हैं। सेम काम करना पड़ेगा मिनट में भी। इफ मिनट इज लेस देन 10 मतलब सिंगल डिजिट का है, तो m इज इक्वल्स टू उसके आगे 0 जो 0 लगा रहे हैं और उसके आगे मिनट लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग m को दिखा देते हैं। और सेम काम हमको सेकंड में भी करना पड़ेगा। अगर सेकंड हमारा लेस देन 10 है तो s इक्वल्स टू हमारा 0 प्लस सेकेंड, तो ये आप 2 डिजिट में दिखेगा जो पहले 1 डिजिट में दिख रहा है। अब इसको हम कर लेते हैं, टेस्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का घड़ी ऐसे चल रहा है, यहाँ पर अनडिफाइंड हो गया, इसको अनडिफाइंड हो गया इसलिए कहते हैं एल्स पार्ट में, एल्स पार्ट में एल्स में s इज इक्वल्स टू सेकंड हो जाएगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। यहाँ पर m इज इक्वल्स टू मिनट हो जाएगा, एल्स और यहाँ पे एल्स h इक्वल्स टू आवर। आप देख लेते हैं, टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। 2 डिजिट में आ गए हैं और 2 डिजिट में जाने के बाद भी सही है तो ये सही होगा। अब 60 सेकंड के बाद उसको मिनट में ले जाना है तो वो हम लोग को करना पड़ेगा, बट इस कोड को पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये जो टाइम बनाया है इसमें एच एम और एस से बनाया है और एच में क्या आ रहा है, एच में आवर और एम में मिनट और एस में सेकंड आ रहा है। और सेकंड अगर सिंगल डिजिट का लेस देन 10 है तो उसके पहले हम लोगों ने 0 जोड़ दिया है और लेस देन 10 नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे रह जाएगा। तो ये तो हो जाएगा हम लोग। उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी काम करना है कि अगर सेकंड बढ़ता बढ़ता 60 हो जाता है तब क्या करना पड़ेगा। सेकंड अगर बढ़ता बढ़ता 60 हो जाता है तो मिनट प्लस प्लस हो जाएगा और सेकंड फिर से 0 से शुरू हो जाएगा। ओके, गॉट इट।
अगर 60 सेकंड हो जाता है तो 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, और सेकंड 0 हो जाएगा। तो हम लोग मिनट प्लस प्लस कर देंगे, फिर से 60 हो जाएगा तो मिनट प्लस प्लस करके 2 हो जाएगा। इसका आउटपुट स्टार्ट टेस्ट। ये 1 मिनट के बाद मिनट को बढ़ा देना चाहिए, और फिर जब हम लोग 60 मिनट हो जाएगा तो वो इधर बढ़ा देना चाहिए, आवर में बढ़ा देना चाहिए। तो वो हम लोग कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या 60 के बाद 59 के बाद जब 60 होता है तो मिनट 1 हो जाएगा और फिर सेकंड 0 से शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोगों को बनाना था, तो ये हम लोग अभी बना करके देख रहे हैं। अभी कुछ सेकंड्स और बाकी है। तो इस टेस्ट में एक काम और करना है कि सपोज टेस्ट 10 मिनट का है, तो 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली रिजल्ट पे चला जाए या बंद कर दे, बता दे कि आपका टाइम खत्म हो गया, कुछ ऐसा 5 सेकंड 10 सेकंड पहले या 1 मिनट पहले अलर्ट करना हो, तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए 59 के बाद ये ऑटोमेटिकली हो गया, तो ये हमारा घड़ी बन करके तैयार हो गया है। और इसको और सेंटर में कर देते हैं, थोड़ा बेहतर बनाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम लोग कर सकते हैं। वेयर विल डू दैट, विल डू दैट इन द CSS कंटेनर में हमारा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेंटर से शुरू। अच्छा, पैडिंग भी दिया हुआ है। टेस्ट अलाइन अगर सेंटर करेंगे तो फिर पैडिंग को हटाना पड़ेगा, बिकॉज उतना पैडिंग दिया हुआ है। तो विल नॉट do that, instead थोड़ा सा पैडिंग को या तो पैडिंग हटा देंगे या फिर पैडिंग से बंद कर देंगे। ओके, तो ये हमारा माई क्लॉक था, ये हमारा टाइम दिखा रहा है। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा 1 मिनट का है, 60 सेकेंड्स का है, या 5 मिनट का है। 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि आपका टाइम खत्म हो गया। 5 मिनट के बाद इसको कॉल करना है। 5 मिनट के बाद कॉल करने के लिए हम लोगों के पास क्या है, सेट टाइम आउट। ठीक है, वी हैव वन फंक्शन जो एक ही बार कॉल होना है। टेस्ट एक बार खत्म हो गया तो हो गया, वहां पर हम लोग किसको कॉल करेंगे, सेट टाइम आउट को कॉल करेंगे। और जब हम टाइम को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको क्या कॉल करना पड़ेगा, सेट इंटरवल को कॉल करना पड़ेगा। तो देखिए जब बटन हम क्लिक कर रहे हैं, टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम set interval को कॉल कर रहे हैं। Why set interval is being called here? Because we have to call this function again and again after every second. अब हम लोग ये टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो एक तो है कि हमारा माई क्लॉक शुरू हो गया। दूसरा एक और फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा जो हमारा उतना समय के बाद इसको स्टॉप कर देगा। तो एक और फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, वो हम लोग लिखेंगे सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट। और इसमें हम लोग फंक्शन बनाते हैं एग्जाम ओवर, दिस विल बी द नेम ऑफ द फंक्शन। और ये सपोज 1000 इज फॉर 1 सेकेंड, तो इनटू हम 60 कर देंगे तो दिस इज 1 मिनट, इनटू हम 60 कर देंगे तो दिस इज 1 आवर। तो अगर 1 घंटा का टेस्ट है तो एग्जाम ओवर फंक्शन 1 घंटा के बाद कॉल होगा। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। हमको अगर सपोज कीजिए कि अभी हमको करना है 1 सेकेंड इंटू 60, दैट इज 1 मिनट इंटू 2, 2 मिनट के बाद हमारा टेस्ट ओवर हो जाएगा। तो ये एग्जाम ओवर को कॉल करना है, और एग्जाम ओवर फंक्शन एक हमको बनाना पड़ेगा। तो ये एग्जाम ओवर फंक्शन में जाकर के एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन एग्जाम ओवर। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल होगा आपका 2 मिनट के बाद। अगर उसको 20 मिनट करना है तो अकॉर्डिंगली वहां पे टाइम हम लोग चेंज कर देंगे। एग्जाम इज ओवर
उसके बाद यहाँ से हम लोग सी रिजल्ट नाम का फंक्शन कॉल करके उसको रिजल्ट दिखा देंगे, उसने कितना सही बनाया कितना गलत बनाया। और सी रिजल्ट फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, सी रिजल्ट, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कितना क्वेश्चन सही कितना क्वेश्चन गलत यूजर ने आंसर किया है। अभी सिर्फ हमको देखना है कि क्या ये 2 मिनट में कॉल हो जा रहा है कि नहीं। तो ये हम आ जाते हैं और इसको हम लोग रन कर देते हैं और इसको हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। टेस्ट स्टार्ट करके हम लोगों को 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। सपोज यूजर ये टेस्ट दे रहा है और ये आगे पीछे ये हम लोग काम कर रहे हैं सपोज, तो ये यहाँ पे ये चलता रहेगा और उधर वो काम भी होता रहेगा। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट और इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना क्वेश्चन का आंसर यूजर ने सही दिया कितना क्वेश्चन का आंसर यूजर ने रॉन्ग दिया। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एरे बनाएंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर है वो पहले से स्टोर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सपोज ए सही आंसर है तो वो हम लोग स्टोर रखेंगे, 2 का कौन सा ऑप्शन सही है वो स्टोर रखेंगे। इसी तरह से पूरा सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है उसका करेक्ट आंसर क्या है वो एक एरे में हम लोग स्टोर करके रखेंगे। और सिमिलरली जब जब यूजर कोई एक टेस्ट का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करता है, सपोज यहाँ पर बी सेलेक्ट करता है या सी सेलेक्ट करता है, तो इसने सही किया या गलत किया वो स्टोर करके एक जगह पे रखना पड़ेगा, या यूजर ने क्या आंसर किया वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। और सी रिजल्ट में जाकर के हम लोग मैच करके दिखा देंगे कि यूजर ने जो आंसर दिया उसमें से कितना सही दिया कितना रॉन्ग आंसर दिया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट में कि हम लोगों को ये भी पता रहना चाहिए कि कितना क्वेश्चन है। तो ये तो ऑलरेडी हम लोगों के पास है। दूसरा पता रहना चाहिए उससे ऑप्शंस क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग के पास एरे में स्टोर है। तीसरा एक एरे और बनाना है जिसमें हम लोग करेक्ट आंसर्स स्टोर करके रखेंगे। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट सेशन। अभी देखते हैं कि क्या 2 मिनट के बाद जो कि होने वाला है ये टेस्ट ओवर फंक्शन कॉल होता है। ये 2 मिनट के बाद टेस्ट ओवर फंक्शन कॉल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि कोई चीज मिस किया है। So let us come to the code. Or it's over out. It's over 1 सेकंड into 60 कर दिया तो ये हो गया 60 सेकंड। 60 सेकंड into 120 सेकंड, 120 सेकंड मतलब 120 सेकंड मतलब 2 मिनट। ओके, हम लोग देखते हैं क्या कॉल हो रहा है। अच्छा इसका ब्रैकेट छोड़ा, सॉरी अभी पहले चेक कर लेते हैं इसका setTimeOut, setTimeOut function, setTimeOut function on click setTimeOut of 1,000 or 1,000 exam over setTimeOut exam over 1,000 exam over expenditure level exam over see result see result नहीं जाना है बट ये एग्जाम ओवर कॉल नहीं। इसमें इसको हम जरा से उठा देंगे। Let's not about these two functions.
स्टार्ट एग्जाम नाम का फंक्शन को कॉल करता है। स्टार्ट टेस्ट में स्टार्ट एग्जाम, और ये स्टार्ट एग्जाम फंक्शन को कितना है। Start exam function. setInterval. Set time out. Set time out. It's steps. So let's see. One, two, three, four, five. वहां पे टाइम आउट ये मैंने ओ कैपिटल से लिख दिया था, इसलिए नहीं हो रहा था। वहां से भी कॉल हो जा सकते थे, यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम ओवर कर लिए। अब ये हम लोगों को करना है सपोज आफ्टर 1 मिनट, तो या आफ्टर 10 सेकेंड तो इंटू 10 कर देंगे, आफ्टर 1 मिनट तो इंटू 60 कर देंगे, आफ्टर 1 आवर तो इंटू 60 कर देंगे, और इस तरह से हम लोग एग्जाम ओवर करेंगे। अब एग्जाम ओवर हो जाने से क्या करना चाहिए, हम लोगों का जो ऑप्शंस दिख रहा है या नेक्स्ट बटन और क्लिक बटन, वो सब को हाइड कर देना चाहिए। तो वो सब भी हम लोग यहाँ पर एग्जाम ओवर फंक्शन जो है इसमें क्या करेंगे, जो बटन है उसको हम लोग उसका डिस्प्ले नन कर देंगे, तो बटन दिखना नहीं दिखेगा वहां पे। तो ये काम भी हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए कि जब हमारा टाइम ओवर हो जाता है तो ये जो नेक्स्ट बटन प्रीवियस बटन है ये मूव करना बंद हो जाएगा। ये बटन को हम लोग पूरा डिव को हम लोग हाइड कर सकते हैं। पूरा डिव को अगर हम लोग हाइड कर देंगे तो वो बटन्स वाला जो डिव है वो हाइड हो जाएगा। तो उसको कर ही लेते हैं एक मिनट। बटन का डिव कहीं पर है, BTN नाम से, प्रीवियस नेक्स्ट नाम से। IT equals to and options. एग्जाम ओवर हो जा रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, यूजर को मैसेज देंगे एग्जाम ओवर हो गया, और यहाँ पर हम लोग एक काम और करेंगे, document dot get element by ID options detail options पर देख लेते हैं, डिटेल ऑप्शंस तो जब एग्जाम ओवर होगा तो ऑप्शंस हट जाएंगे। अब हम लोग एक बार करके देख लेते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। एग्जाम इज ओवर, और यहाँ से देखिए ऑप्शंस यहाँ से हट गया, ताकि आप यूजर जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सके। उसी तरह से हम लोग प्रीवियस नेक्स्ट को भी अगर हटाना चाहते हैं तो हम प्रीवियस नेक्स्ट को भी हटा सकते हैं, और ये जो घड़ी चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं तो उसको रोक भी सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी कैन डू
जैसे एक डिव को हम लोगों ने हटाया, वैसे दूसरे डिव को भी हम लोग हटा सकते हैं, तो उसको भी हटा देते हैं। उस डिव को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस डिव का भी एक आईडी रखना पड़ेगा, आईडी पोस्ट जाते हैं और सेम कोड लिखेंगे उसके लिए। सिर्फ इसको चेंज कर देंगे। अब 10 सेकंड पे एग्जाम इसलिए run करेंगे। तो 2 सेकंड डिले हो रहा है, एक बार हम लोग वहां से कॉल कर रहे हैं इसलिए 1 सेकंड जा रहा है, 1 सेकंड उधर डिले हो रहा है, इसलिए 2 सेकंड का जो डिफरेंस था उसको मैंने 2 सेकंड बढ़ा दिया है। और इसको टाइम शुरू कर देते हैं। सैम इज ओवर। अब यूजर कुछ नहीं कर सकता, अब इसके आगे टेस्ट नहीं कर सकता, एग्जाम होगा। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट बटन बनाएंगे, सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो ये रिजल्ट दिखाएगा। दैट विल डिस्कस इन द कमिंग सेशन। तो अब इसमें दो चीज बचा हुआ है इस एप्लीकेशन में। एक है कि सही गलत कितना क्वेश्चन सही कितना क्वेश्चन गलत, ये हम लोग को बताना है, यूजर को दिखाना है कि आपने क्या क्या सही किया क्या क्या रॉन्ग किया। दूसरा, ये जो क्वेश्चन आ रहा है ये स्टैटिकली यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, इट हैज टू कम फ्रॉम द सर्वर एंड दैट will come from the server to this application through API। और API में जो डेटा ट्रांसफर होता है that is done with the help of JSON। तो हम लोगों को JSON पढ़ना है, API पढ़ना है, फिर इस क्वेश्चंस को हम लोगों को डायनामिकली सर्वर से यहाँ पर that will be done in the next session। इसको अभी आप लोग ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हम आपको सिर्फ सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का सिंटैक्स बता के छोड़ सकते थे, बट दिस इज रियल एग्जांपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।